Hello students, today I am again here with the class 12 business study part B, and today I am going to start a new chapter, marketing management. So guys, if you are new here, so please subscribe and like the channel. And then after now listen, in this video lecture I am going to explain about the marketing terms, and after the some important topic we are in this topic learning about the concepts of marketing management and various types etc. So listen, मार्केट, हम लोग बचपन से ये नाम सुनते चले आए हैं। मार्केट होता क्या है, हम लोगों की नज़र मार्केटिंग क्या होती है। जनरली लोग मार्केट और मार्केटिंग को एक ही समझते हैं। मार्केट मीन्स जो आप कहेंगे मार्केट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट, तो आपके दिमाग में तुरंत एक ही चीज़ नज़र आएगी कि जहाँ पे सारे सामान मिलते हैं और हम जाते हैं उन चीज़ को परचेज करते हैं। सही है नहीं? सही है। तो लिशन, होता क्या है द टर्म मार्केट। फर्स्टली मार्केटिंग मैनेजमेंट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तो हमको कुछ टर्म्स को समझना चाहिए कि ये टर्म्स होते क्या हैं। अगर आप ये कहते हैं जो कि मार्केट is a place where the buyer and seller meet together for exchange something, means exchange the goods, तो आप कुछ हद तक आप सही हैं, आप सही हैं। लेकिन nowadays we can also see that there are various types of methods for the selling of goods. We are sitting at our home and we purchase the things online by telephone etc. Then what do you mean by market? Solution, मार्केट के लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो कुछ टर्म है जैसे मार्केट, कस्टमर, मार्केटियर, मार्केटिंग, इन टर्म्स को समझना जरूरी है। एंड आई एम ऑल्सो वांट टू टेल यू, and this is the most important chapter because if you are prepare your, we can say that practical files, and you have to select one topic from this chapter also, means from the in the view of practical examination and your viva examination and your board examination, this chapter is most important for you, so you have to learn each and everything. So I am right here in detail because you have to learn for still and for your viva and your board examination. So listen, the term market. The term market has its origin in the Latin word marctus. Marctus. It means mercantile, wares or trade. Means जो मार्केट है, ये मार्केट आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड के मार्कटस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? मर्केंटाइज और ट्रेड, जिसका मतलब ट्रेड होता है। और यहाँ पे ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि इफ एनीवन आस्क्स टू यू व्हाट डू यू मीन मार्केट, व्हाट फ्रॉम वेयर ही इज कम, where this came, then you can easily say that the market is derived from the Latin word marketus, which means mercantile or trade. Now listen, where the buyer and sellers meet. Now this is where the buyer and seller meet and conduct buying and selling activities. Means market is a place where the buyer and seller meet together to conduct the selling activity, buying and selling activity. मतलब मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, वायर और सेलर आते हैं और सेलिंग एक्टिविटी को, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये ओल्ड डिफिनेशन है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। समटाइम द we can write it, then after we have to write the use, sometimes the word use of the term market means also suggested the nature of product. मीन्स कभी कभी क्या होता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट वर्ड क्या करता है, प्रोडक्ट के नेचर को भी एक्सप्लेन करता है कि जैसे दैट इज क्लॉथ मार्केट, कपड़े का मार्केट,
सब्जी मार्केट, किचन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कार मार्केट, etc. Means sometimes the use of the term market also suggested the nature of product, that is cloth market, sabji market, chicken market, electronic market, etc. And also the word market indicate the volume of goods. When the goods are traded in bulk, then it is known as wholesale market. When the goods are sold in bulk quantity, जहाँ बहुत बड़े क्वांटिटी में सेल किया जाता है उसको होलसेल मार्केट बोलते हैं. And when the goods are sold in small quantity, then it is known as retail market. यानी मार्केट कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, मार्केट एक बहुत बड़ा टर्म है. ठीक, अब यहाँ देखिए, in modern sense that this definition we have to write in our examination also. When the market has a broader meaning, it's referred to a set of actual and potential buyer of a product. Means मार्केट क्या होता है? तो मार्केट एक सेट होता है, सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट. मतलब क्या कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक्चुअल यानी जो कि विलिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड पोटेंशियल बायर जो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनके लिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो प्लेस क्या होता है? मार्केट होता है. जैसे अब देखिए, आप किसी को मैं और बताता हूँ आपको होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फैशन डिजाइनर डिजाइन अ न्यू ड्रेस and offer it for exchange, all the people who are willing to buy and offer some value for it can be stated to the market for that dress. Means we can say that if anyone producing one goods for a particular community, then all the community for which the goods are produced, then that is called market. किसी ने कपड़ा बनाया, किसी फैशन डिजाइनर ने कपड़ा बनाया, तो वो कपड़ा जो बना, वो ड्रेस जितने लोगों के लिए बनाया गया है और जो लोग उसको खरीदने की इच्छा करते हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा? मार्केट होगा. नाउ it is important to note that the focus of the term market, it is not on the place, rather it on the meeting of buyer and seller. Since conveniently the buyer and seller used to meet the seller at a physical location, the term market is referred to a place. क्योंकि तो पहले क्या होता था कि बायर और सेलर क्या होते थे, एक प्लेस पे जाते थे और वहाँ प्रोडक्ट को परचेज करते थे. मतलब बायर जहाँ पे, सेलर जहाँ होता था, बायर जाता था, वहाँ परचेज करता था, इसलिए वहाँ पे प्लेस वर्ड का यूज किया जाता था. हाउएवर इट इज नॉट करेक्ट. बायर एंड सेलर कैन कंडक्ट बिजनेस विदाउट मीटिंग और एट प्लेस बाय टेलीफोन, मेल और नाउ इंटरनेट इज ओपन ए न्यू मैकेनिज्म whereby the business can be conducted. तो ये आपको मैंने बताया, आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समराइज कर लीजिएगा. नाउ लिसन, यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर योर क्यूरीज, अकाउंटिंग बाय ए के तिवारी. So and on Facebook you can also join the accounting expert channel, group. Now the term customer, अब आपको मेरे हिसाब से मार्केट समझ में आ गया होगा. अब देखिए कस्टमर क्या होता है. तो कस्टमर हम लोग तो सब लोग जानते हैं कि कस्टमर कौन होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में भी, कस्टमर के बारे में भी. तो यहाँ पे कस्टमर का मतलब क्या है? कस्टमर refers to people or organizations that seek satisfaction of their need and want. कौन? तो क्या होता है? तो कह रहा है रेफर टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स. इट मीन्स क्या कि कस्टमर वो होते हैं, पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नीड और वांट्स को क्या होता है? सेटिस्फाइड किया जाता है. अब यहाँ पे देखो, नीड एंड वांट, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें नीड क्या होता है? नाउ वी हैव टू नीड्स.
अब आप बताइए नीड्स क्या होगा, सोच लीजिए। नीड्स मीन्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। वी कैन आल्सो से दैट नीड्स रेफर टू द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। नीड्स इज द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो देखो, जो भी जरूरत की बेसिक चीजें हैं वो हमारी नीड्स हैं। क्लॉथ, फूड, इट इज नीड। अब जैसे क्या हमको कपड़े की जरूरत है, ये हमारी नीड हुई, ठीक। और ऐसे ही समझ लो वांट क्या होता है, वांट, नीड, कपड़ा हमको मिल गया, मेरी जरूरत पूरी। बट अब इसमें हमको क्या चाहिए, पीटर इंग्लैंड चाहिए। फूड, भूख लगी थी, खाने को चाहिए, ये दैट इज आवर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। बट नहीं, हमको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, दैट इज आवर वांट, दिस इज आवर वांट। सॉल्यूशन, what do you mean by want? तो want means a related concept is want. Some people term use two term as synonyms, but it is not correct. Need give rise to want. Solution, I already explained. The basic human requirement is called needs, and want means whatever excess of need, we can say that. तो want क्या होता है, जब हमको कोई चीज क्या होता है, अपने जरूरत से ज्यादा चाहिए, या वी आर विलिंग टू परचेज ए कमोडिटी विच इज मोर है। सो लिसन, हम लोगों ने इसमें आपको मार्केट, कस्टमर, नीड एंड वांट वी आर कवर, एंड नाउ आर सेलर, द नेक्स्ट टर्म marketeer and seller. Solution, marketeer or seller, we can also know that by the name we can also say that कि कौन होता है, seller of the product. seller किसे कहेंगे, marketeer किसे कहेंगे, तो we can also say that the person who sell the goods in normal term, but it is not correct. Now listen, the marketeer or seller means marketers refer to any person who take more active part in the process of exchange. Taking more active part in the process of exchange of goods. Means marketer कौन होता है, तो वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। यानी क्या, किसी भी गुड्स का एक्सचेंज करना है, उसमें जो ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्ले करेगा वही क्या होगा, मार्केटर होगा। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि समटाइम बायर मीन्स रेदर देन सेलर, बायर कैन आल्सो बी ए मार्केटर। अब ये आप कहेंगे ऐसे कैसे, अब ये आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, तो लिसन, आई एम टेल यू, it is noted that a buyer can also be treated as marketeer. Actually, marketer refers to any person who take more active part in the process of exchange. Normally it is seller who is more active in exchange process. He and she analysis the need of potential buyer, develop a market offering and pursue the buyers to buy the product. मीन्स होता क्या है, कभी कभी बायर भी मार्केटर का प्ले रोल करता है, कब, जब उसको चीज़ों की ज़रूरत हो, ठीक। तो ये मार्केटर का टर्म था, यानी क्या, इस वीडियो लेक्चर में हमने इन चीज़ों को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिफिनेशंस के साथ और अगर उसके फंक्शंस एक्सेट्रा सारे चीज़ों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए
थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड